Hi guys, so first of all, thank you so much for your birthday wishes. My birthday was awesome as always, but this year it was very special for me because my organization, Fine Jewelry Manufacturing Limited, has donated one medical equipment to Tata Memorial Hospital, Mumbai, which is ultimately going to help 1,500 cancer patients. So it was very special for me because this inauguration ceremony was on my birthday only, that is on 30th June, and I was there. My boss was there, the founder of our organization was there, the HOD of different departments were there. So it was very special for me. So yes, thank you so much. And today's video is going to be a Q&A video where I have asked you to ask me a question related to the corporate world. So I have only shortlisted those questions which are particularly with respect to the corporate world only. So let's get started. So the first question is from Runal and it is a very basic question, but of course many people have asked me this question. Do you get Saturday and Sunday off? So yes, luckily and thankfully, yes, I do get Saturday and Sunday off, which is very much important to me. Usually I record all this video in Saturday and Sunday only. I went to do shopping and do all my personal stuff on Saturday and Sunday only. So yes, this is in fact one of my criteria to select the jobs. So during my internship also, I used to get Saturday and Sunday off, and now also I'm getting Saturday and Sunday off. So I will prefer only those organizations where I get Saturday and Sunday off. Yes, call me anything, but yeah, Saturdays and Sunday are very much important for me. We heard about politics in corporate job. Is that true? Akhil ने पूछा है. Yeah, so yes, there is politics. You cannot deny, and there are various things which we have to go through with, but again, it is up to you how you handle all those stuff, whether you are getting involved into those politics or not. But yeah, there is politics. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शशांक. कभी कभी डर लगता है कि अगर मैं सीएस बन भी गया तो क्या मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा इतनी हाई प्रोफाइल जॉब को, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं अभी बच्चा हूँ तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत एक्सपीरियंस होता होगा एंड मैं कैसे रह पाऊंगा वहां पे. So first of all, this was the same thing which I was thinking when I was starting with my internship and when I was starting with my job. I was like, यार मैं अभी तो बच्ची हूँ, how I'm going to survive this world. But eventually, when you work, you have to just focus on your work. You just have to keep learning. You just have to keep into your mind that you are going to learn. Because starting के 2-3 years are just a learning for us. उसके बाद में we get an experience and हम उस पे एक actual job start होती है. So you just have to focus on learning. बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम उत्कर्ष. दी, क्या ऑफिस का वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि आप अपने वीकेंड्स एंजॉय नहीं कर पाती, या घर आकर पर भी आपको ऑफिस का काम होता है? सो थैंकफुली ऐसा नहीं होता है. घर आके भी मुझे ऑफिस का काम नहीं करना पड़ता है बिकॉज मैंने लैपटॉप या हमारा पीसी कैरी नहीं किया है. और आई फील कि अभी आई एम ऑन द इनिशियल स्टेज. जब आप बड़ी पोजिशन पे, जब आप के पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस है एंड व्हेन यू आर हेडिंग द टीम, तो वहां पे ऐसे चांसेस हो जाते हैं. और हमारी ऑर्गेनाइजेशन, मैं जहां काम करती हूँ वहां पे ये कल्चर फॉलो नहीं होता है. इनफैक्ट मैं ही ऐसी पर्सन हूँ जो डॉट 5:30 बजे भी नहीं, 5:20 तक पैक करके निकल जाती हूँ. सो यस, हार्श रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये पूछा है क्वेश्चन MG अग्रवाल ने. The harsh reality is that actually nobody cares about you, nobody is there for you. कहने के लिए ऐसा होता है कि yes, but जब कभी कुछ ऐसा होता है so always people think about themselves only. So which is okay. हम नॉर्मल वर्ल्ड में भी ऐसा करते हैं, ऐसा कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कहानी नहीं है, हर जगह की यही कहानी है. Then the next question is from Prashant. Most scope in which city? So आई फील मेट्रो सिटीज में, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इनफैक्ट चेन्नई में, अहमदाबाद में, ये सारी जगहों पे सीएस का स्कोप ज्यादा है.
ज्यादा इसीलिए क्योंकि हम कंपनी सेक्रेटरीज हैं, कंपनी जहां होगी वहां ही हमारी ज्यादा डिमांड होगी। तो यही सारे प्लेसेस पे एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो यहाँ ज्यादा स्कोप है। तो ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि मैम हम यहाँ हैं, यहाँ होगा क्या, डू वी हैव टू मूव इन? सो यस, बहुत सारे ऐसे हैं मुंबई में, मेरे ही फ्रेंड्स हैं जो इंदौर से, राजस्थान से, बहुत अलग अलग दूर दूर से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कुणाल शर्मा। मैम, आर गुड लुक्स नेसेसरी अलॉन्ग विद द नॉलेज एज अ कंपनी सेक्रेटरी? सो आई डोंट थिंक सो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि गुड लुक्स जरूरी हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट इज कंसर्न अबाउट योर नॉलेज ओनली। आपका काम है कंप्लायंस करना, कंपनी में कोई नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए, आप भले कैसे भी दिखो। सो यस। Hey Dee, I have a question. This question is from Nikhil. I have a question like how VCS help in management and what's the role of the fresher CS in a company? So we help management in various ways. Basically, the management know how to do a business, but to do a business there are various rules and regulations, there are various laws which we have to follow, which they don't know. So we help them to implement their decisions, like if they want to do if they want to increase the remuneration of their directors or their management, then they will ask us how we can do this, whether this will fall into this. So there is a criteria of 11%. So we will suggest that there is a criteria of 11%. We have to go by that. So if they want to give the additional remuneration, then we can recommend that we can give them as a commission. So किस तरीके से उसको करना है, क्या करना है, वो उनका काम है। अब उसको किस तरीके से करना है so that it fits into the law, वो हमारा काम है। Next question from Ankit. Under whom the CS work? Who gives the order? Director or any other person? तो again it depends. अगर आप you are the only CS, आप main हो जैसे मैं हूँ, तो यहाँ पे आपको आपके डायरेक्टर से, आपके मैनेजमेंट से, और अगर आपका कोई बॉस है, जैसे मेरा हमारे कंपनी में CFO जो है हमारे कंपनी के, जो GM इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स हैं, वो मेरे बॉस है, और जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, तो मुझे उन दोनों जन से ऑर्डर्स आता है। सो यस, अगर आपकी टीम है ऑलरेडी CS की, तो जो मेन HOD रहेंगे वो, और उन्हें आता है टॉप मैनेजमेंट से। श्री रग ने क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंस ऑफ बेयर एक्ट इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ अ CS। सो बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम आज कितना भी गूगल हो, बट आज के जमाने में भी वी रेफर द बेयर एक्ट ओनली, कि एक्चुअल वर्डिंग क्या है एक्ट में। हमारा काम है इंटरप्रेट करना। आप गूगल से एक रेफरेंस ले सकते हो एक्सप्लेनेशन के लिए, बट जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो बेयर एक्ट से ही होती है। तो बेयर एक्ट हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आकृति। इज ग्रेजुएशन इज कंपल्सरी विद CS कोर्स एट वन टाइम? So not only with the CS course but with all other courses. एक कंपनी में जब आप जाते हो ना, तो वहां पे बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट, आपने कोई भी प्रोफेशनल डिग्री की हो, बट आपका बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपको पूछा जाता है। देखो, और एक सेफ्टी साइड के लिए भी, अगर आपसे CS हुआ ना हुआ, आपके पास एक बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मुसरत। Hey ma'am, what skills do they look in CS apart from the legal knowledge? Apart from the legal knowledge, आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, कि आप लोगों से अच्छी तरीके से बात कर पाओ, अपनी बात को कन्वे कर पाओ। आपके पास ड्राफ्टिंग अच्छी स्किल होनी चाहिए, और लोग दे डोंट, मतलब ऐसा नहीं होता कि दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा रोल प्ले करता है व्हेन यू हैव अ नॉलेज अपार्ट फ्रॉम द लीगल वर्ल्ड। मतलब आपको जो एक्सपेक्ट किया जाता है उसके अलावा अगर आपके पास नॉलेज है, जैसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बिजनेस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कॉमनली क्या चीजें चल रही है, करंट अफेयर क्या चल रहा है, अगर आपके पास वो नॉलेज है ना, ट्रस्ट मी, आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो, किसी भी कन्वर्सेशन में आप घुस सकते हो। और मतलब क्यों ये इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि आप एक CS हो, आपको बहुत सारे मैनेजमेंट पीपल के साथ में उठना बैठना होता है। वहां पे एवरी टाइम यू आर नॉट गोइंग टू टॉक विथ रिगार्डिंग द कंप्लायंसेस ओनली, तो आप क्या बात करोगे? एंड दे आर नॉट कंसर्न अबाउट कि भाई सोशल मीडिया में क्या हो रहा है या टिकटॉक में क्या हो रहा है।
सो उसके लिए आपके पास एक करंटली क्या इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं वो पता होना चाहिए। क्रिस ने क्वेश्चन पूछा है, टेल मी द बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट कंपनी सेक्रेटरी दैट यू फेस्ड इन योर जर्नी आफ्टर बिकमिंग अ सीएस। बेस्ट थिंग इज मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट और इतना ज्यादा अपने लिए एक रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी मुझे पहले कभी नहीं आई थी जो मुझे सीएस बनने के बाद आई, वो भी इंटर्नशिप के बाद में जब आई हैव जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन एज अ मेन कंपनी सेक्रेटरी। सो द बेस्ट थिंग इज वी गेट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। Worst thing is lot of stress also is there, lot of stress is there when you especially handling all the work independently. So next question is from Sanket. Hi Priya, what are the few general corporate ethics which we should follow? Secondly, how you balance your professional and personal life, as many times it's been imbalance in a professional. सो कॉर्पोरेट एथिक्स, फर्स्टली वी एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमें बहुत सारा अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सेस होता है जो चाह के भी हमें नहीं बताना होता है। हमारे अंदर, स्पेशली लड़कियों के अंदर होता है, यार कंपनी में ये होने वाला है, मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊं, बट नो, हमें ये बात नहीं बतानी होती है क्योंकि हम मैनेजमेंट के साथ उठते बैठते हैं तो वी गेट टू एक्सेस कि यार कंपनी में मर्जर होने वाला है, यार कंपनी में ये मैनेजमेंट आने वाला है, कंपनी का बोर्ड में ये चेंज होने वाला है। सो बेस्ट एथिक्स यही होता है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी होती है, सबसे पहले ये चीज होती है। और एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना होता है कि आपको भले कितना भी गुस्सा आए आपके डायरेक्टर्स के ऊपर, आपके मैनेजमेंट के ऊपर कि हाउ कैन यू ब्लेम मी और हाउ कैन यू आस्क दिस सिली क्वेश्चंस, पर आपको कंट्रोल करना होता है। सो यस। सेकेंडली, हाउ आई बैलेंस माई वर्क लाइफ बैलेंस। सो इनिशियली इट वॉज बहुत मैसी हो जाता था, मैं घर आके भी वही सारी चीजें सोचती रहती थी, बट अब स्पेशली दिस ईयर व्हेन मेरा 3 साल यहाँ कंप्लीट हो गया, आई हैव स्टार्टेड कि घर आते ही, इनफैक्ट ऑफिस से निकलते ही मुझे कुछ भी नहीं सोचना है ऑफिस के बारे में, एंड व्हेन आई एम एट होम मैं कुछ भी ऑफिस के बारे में नहीं सोचूंगी। भले माइंड में चलेगा कि एक टेंशन है यार, मंडे करेंगे, बट घर पे आके वो चीज को कैरी नहीं करना है। सो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ईशा। How do other employees or a KMP look up CS as? I mean, how do they treat them? Do you feel very special in the office for being CS, or any special treatment given to you for being CS? So yes, I definitely feel very special for being a company secretary over there. It was special for me. It is still special for me because I am the company secretary into my organization. आई गेस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी सेक्रेटरी कुछ लगभग 20 सालों बाद अपॉइंट हुआ है, 20 या 22 सालों बाद अपॉइंट हुए हैं। सो यस, एंड दे वर नॉट मच अवेयर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली अ कंपनी सेक्रेटरी डू, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू। सो दे वर लाइक कि इनिशियली दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक अ ऑडिटर, कि ये एक्सटर्नल ऑडिटर है और इसके सामने ना नई नई ये गलतियां नहीं बतानी है। सो दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक दैट, बट नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम दे कम टू मी कि यार पता ना इसमें क्या होता होगा, ये कैसे करना है, ये हमने राइट किया है कि नहीं किया है। इवन द अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो कम टू मी एंड दे गिव मी देयर एग्रीमेंट्स टू वेट, टू चेक वेदर दिस इज प्रॉपर और नॉट। सो या, आई फील वेरी स्पेशल, very special I can say. There are various things which I am experiencing and I feel कि एक CS का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एक ग्रोइंग कंपनी में, एक स्मॉल कंपनी में, क्योंकि आप उसकी बेस प्रिपेयर करते हो। एक कहते हैं ना कि एक कंपनी में एक कॉर्पोरेट कल्चर लाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक CS का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो यस, recent amendments in corporate world are every time asked in interviews, right? So this question is from Shruti. So also in your latest video you have shared your experience where you were asked about the MSME related questions. So please share some tips so that we can also update it. So basically आपको अगर recent amendment से aware होना है तो MCA की वेबसाइट, SEBI की वेबसाइट, BSc, NSC, RBI की वेबसाइट्स और भी जो भी रेगुलेटरी आपको जिसके बारे में जानना है उनकी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहो।
तो सबसे पहले मैं जैसे ही ऑफिस जाती हूँ, मैं एमसीए की वेबसाइट खोलती हूँ, आईसीएसआई की वेबसाइट खोलती हूँ, सेबी की वेबसाइट खोलती हूँ, बीएससी की वेबसाइट खोलती हूँ, आरबीआई की वेबसाइट, टू चेक कि कोई नई चीज आई है क्या, कुछ न्यू अमेंडमेंट वहां पे पोस्ट किया गया है क्या। अगर किया गया है तो मैं उसे रीड करती हूँ, फिर उसको एनालाइज करती हूँ कि ये अमेंडमेंट मेरी कंपनी को कैसे अफेक्ट करता है, उसकी प्रॉपर नोटिंग करती हूँ। वो सर्कुलर को डाउनलोड करके मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है अपडेट का, उसमें मैंने कंपनीज एक्ट, आरबीआई, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर अलग अलग फोल्डर्स बनाए, उसमें पोस्ट कर देती हूँ। और फिर उसके ऊपर वापस से अदर आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, अगर किसी ऑथर ने उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन किया है तो इन दिस वे आप भी इस तरीके से अमेंडेड अपडेटेड रह सकते हो, क्योंकि हमारे लिए अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से लोग लाइफस्टाइल से अपडेटेड रहते हैं, उस तरीके से हमें जो कंप्लायंस में अमेंडमेंट्स होते हैं उससे अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो here only because this video is very long. I hope आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस हैं देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस को मैंने आंसर नहीं किया है सो डोंट वरी, मैं आपके पूछे गए क्वेश्चंस पे ही रिप्लाई दे दूंगी। टिल देन प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, खुद पे पढ़ाई के अलावा भी काम करो, एक अच्छी पर्सनालिटी बनाओ, अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, अपना नॉलेज इंप्रूव करो, तो ही जाके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप सरवाइव कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ डिग्री इनफ नहीं है। टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।